हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इन वन शॉट। फर्स्ट टॉपिक आपका है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस which involve chemical changes. Second, a rearrangement of atoms takes place between the reacting atoms. And third, chemical reactions are the processes in which the new substances with new properties are formed. Now, second topic is what are reactants and what are products. Reactants are the substances which takes part during a chemical reaction. Products are the substances which are produced as a result of chemical reaction. तो ये आपके तीन मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहला हो गया आपका व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वी हैव what happens when magnesium ribbon is burnt. When magnesium ribbon is burnt, it produces a white dazzling flame. It produces a white dazzling flame. Magnesium is a silvery white metals, and before burning we rub it with the sandpaper because a layer of magnesium oxide is formed, and which is due to the slow action of oxygen present in air. Now the reaction involved is Mg plus O2. Mg is the symbol of magnesium and oxygen. When heated, it produces MgO. Next क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज बर्न with sandpaper before burning because a protective layer of magnesium oxide is formed due to the presence of oxygen in air, and it slowly reacts with the oxygen present in air. Now how this activity is done, एक चाइना डिश लेंगे आप, उसके अंदर आप पाउडर इस पहले सबसे पहले बर्नर पे आप मैग्नीशियम रिबन को विद द हेल्प ऑफ टोंग्स बर्न करेंगे, और फिर जब एक वाइट कलर का पाउडर आपका एक चाइना डिश में कलेक्ट हो जाएगा. Next topic we have what are the characteristics of a chemical reaction. There are four main characteristics of chemical reaction. First, evolution of a gas. Second, change in temperature. Third, change in color. And fourth, formation of a precipitate. इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको लर्न करना है एंड इनके दो दो एग्जाम्पल्स आपको तैयार करने हैं फॉर द बोर्ड एग्जाम. जैसे सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस. इसके अंदर आपकी दो एक्टिविटीज हैं. फर्स्ट, व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एवोल्यूशन ऑफ bubbles of hydrogen gas is formed, and also there is a change in temperature. तो ये एक्टिविटी आपकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आ जाएगी. सेकेंडली, व्हेन dilute HCl is added to sodium carbonate, evolution of CO2 gas takes place. So then what is a precipitate? A precipitate is a solid product which separates out during a chemical reaction. A precipitate can be formed by mixing the two aqueous solution of by mixing two aqueous solution. It is also formed by passing a gas over a aqueous solution. So प्रेसिपिटेट के लिए आपको क्या एग्जाम्पल करने हैं, जैसे आपने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में ऐड किया तो आपका येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट वी हैव व्हेन dilute sulfuric acid is added to barium chloride, then a white precipitate of barium sulfate is formed. Next we have change in color. Change in color में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं when citric acid to potassium permanganate. जो परमैग्नेट पोटेशियम परमैग्नेट है उसका कलर पर्पल होता है, तो जब उसमें आप सिट्रिक एसिड को मिक्स करेंगे तो ये पर्पल कलर से कलरलेस हो जाएगा. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ change in color. Next we have change in temperature. Change in temperature में जब आप quick lime, when quick lime is added with water it forms lake lime, और जब आप उस बीकर को टच करेंगे तो it will be hot.
ये आपकी एक्टिविटी है। और एक और रिएक्शन है जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, जो ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर है। फिर आपका आएगा सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द atoms of other element from its aqueous solution, it is known as displacement reaction. For example, देखिए, अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है। जब उसमें आयरन नेल को डिप करके रखा जाएगा फॉर 20 मिनट्स, तो कॉपर सॉल्यूशन का जो कलर है वो फेड होने लगेगा, और जो आयरन आपका ब्राउन कलर का था वो रेडिश ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो it is due to the displacement reaction. Fe displaces copper from its solution. So this type of reaction, in which more reactive element displaces a less reactive element from its solution, is known as displacement reaction. वी हैव एन एक्टिविटी। जैसे 2 आयरन नेल्स ले लिए आपने, उन्हें सबसे पहले सैंड पेपर से रब किया। सैंड पेपर से हमेशा इसीलिए रब करना है क्योंकि उस पर धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव कि इन दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for 20 minutes. उस सॉल्यूशन में 20 मिनट के लिए आयरन नेल को पुट करके रख दिया। 20 मिनट के बाद क्या होगा, जो आयरन नेल आप लेंगे तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो आपका फेड होता हुआ दिखेगा, और जो भी आप आयरन नेल को बाहर निकालेंगे तो उसमें एक रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा, क्योंकि उसने उस पर कॉपर आपका वो कॉपर एलिमेंट आपका सबमिट होना शुरू हो गया उस आयरन नेल पे। नेक्स्ट वी हैव, जैसे जिंक है, जिंक आपका जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4, lead plus copper chloride gives lead chloride. These are other examples. Then we have ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द टू रिएक्टिंग सब्सटेंस, तो दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब आपके 2 सॉल्यूशन होंगे और उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि बेरियम सल्फेट के साथ आ गया और सोडियम क्लोराइड के साथ आ गया। तो इस तरह के रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। Then we have oxidation and reduction reaction. Oxidation means the addition of oxygen in a substance is known as oxidation reaction, and if a substance loses oxygen, it is known as reduction. It is said to be reduced. And this type of reaction in which oxidation and reduction both takes place, they are known as redox reaction. So ये आपका पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है, और इसमें अब आपकी एक एक्टिविटी है कि कॉपर पाउडर को आपको एक चाइना डिश में लेना है, पर जब आप उसको हीट करेंगे तो कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर आ जाएगी जो कि ब्लैक कलर की है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कॉपर में ऐड हो गया। और किस तरह से रिएक्शन हुई? कॉपर प्लस ऑक्सीजन फॉर्म CuO, लेकिन अगर आप CuO में वापस हाइड्रोजन गैस पास ओवर करेंगे तो ये रिड्यूस होकर वापस कॉपर और वाटर को प्रोड्यूस कर देगा। थैंक यू।